Good morning to all. Myself Obik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this lecture, I am going to discuss the rate of measure structure application of differentiation. Okay, for JEE main and advanced level exams. Okay, so in the last lecture, I think we had solved various questions from this rate of measure chapters and which came in the different years, I think. Okay, so this actually these questions were collected from the different sources and for your better conveniences. So in this lecture the same thing will be happen, and the various questions will be solved which came in the previous years, different previous years. Okay, so these questions are very important for the entrance level exams. Okay, and I have collected some questions from Singej and Arihant and rd.shrma books also. Okay, so just write up the first question, just take your pen and paper and then start. Okay, start karo or shuru karo. If you like my lecture, if you like my videos, then subscribe, like and share my channel. Don't forget these things. Okay, just you can see in the corner, right corner, that the subscribe, red color subscribe button is there. Just you click this subscribe button and this bell icon को भी आप दबा दीजिए. फिर उसके बाद आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है, that means if you like my videos, then give me a like also. Okay, and I will be motivated more if you give me a like and if you give me actually this more and more motivations from your side. Okay, now the first question: a water is poured into an inverted hollow cone. Okay, if water is poured, question number 1, if water is poured into an inverted hollow cone, okay, whose semi-vertical angle 30 degree, show that its depth increase at the rate 1 centimeter per second. Find the rate at which the volume at which the volume of water increase when the depth is 24 centimeter. Okay, now you have an inverted cone shaped container. Okay, just you are pouring some water into it. Okay, that means inverted cone means what? Just like this. Okay, so just you are pouring some water into it, so I think the water level will be increased. That means if you pour some water more, then I think the water level will be increased. Okay, so here actually this height of the water level is increasing, and the increasing rate is given 1 centimeter per second. Okay, just depth increases at the rate of 1 centimeter per second. That means the depth of the water level is increasing at the rate of 1 centimeter per second. That means water level का height बढ़ रहा है. अब पानी डालोगे तो water level तो कम बढ़ेगा ना. So एक inverted cone, just this is the figure, inverted cone. Okay, this is the inverted cone, and here the water level. Okay, this is the base and it is your height. Okay, so it is your R and it is your H. That means base radius of this cone, inverted cone, is R and the height of this cone is H. Now it is your water level. Okay, and it is your R dash and it is your H dash. Okay, huh? Now actually
this water level rising, and the semi-vertical angle is what? That means this angle is 30 degree. Here you can see semi-vertical angle is 30 degree. Semi-vertical angle means this one. Okay. So here you can see the water level is increasing. That means this part, that means this portion is increasing. That means H dash is increasing. Okay. With respect to what? With respect to second, that means time. Okay. So here just at first you have to assume something. Let base radius of water level, एक काम करो, यहां पर आर एच जो है इसको आर एच नाम दे दो, जरूरत नहीं है. वाटर लेवल, बेस रेडियस इज वाटर लेवल इक्वल्स टू आर सेंटीमीटर. हाइट ऑफ वाटर लेवल equals to h centimeter. Okay. Now semi-vertical angle is 30 degrees given. Okay. So now if you choose this triangle, the triangle name is OAB. For triangle OAB, tan 30 degree equals to height by base. So if you take this triangle, then what will be the height? Height will be this, and base is this, because the shape is like that. Okay. So that means this will be base and this will be height. So height by base means r by h. Tan 30 means 1 by root 3. Okay. So that means here r equals to h by root 3. R equals to what? H by root 3. So why should I find the value of r here? Why shouldn't I find h? Because this question is related to the depth of the water level. Depth. Okay. And this rate also I think also is given of depth. That means depth is increasing and the value of depth is given. So everywhere this depth, that means height related questions is this. Okay. So this radius related part should be converted to the height, and that's why just we have found the value of r, radius, here in terms of h, so that we can replace the value of r wherever it will be introduced as the h term. ओके. यहाँ पर r का वैल्यू हम लोगों ने h by root 3 निकाल के रखा है, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन जो है डेप्थ रिलेटेड है, रेडियस रिलेटेड नहीं है. हर जगह आप देखो डेप्थ ये सब लिखा हुआ है, दैट मींस h रिलेटेड है. सो जहां जहां पर मुझे r मिलेगा तो r तो मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चन है, और कौन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है उसमें r भी है. तो r अगर हो तो हम लोग कैसे r को यहां से भगा लें, तो यही चीज के लिए हम लोगों ने r का वैल्यू h रिलेटेड निकाल के रखा है. फिर लास्ट में जाके r के जगह h का वैल्यू पुट कर दें, फिर उसके बाद सब पूरा टर्म्स जो है h में कन्वर्ट हो जाएगा, डेप्थ में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ओके. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसके बाद लिखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. देखो ये डेप्थ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस. डेप्थ हम लोगों ने क्या लिया था? h is increasing, that means dh by dt equals to 1 centimeter per second. ये given है. आप लोगों को निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर इंक्रीजिंग, वॉल्यूम का रेट निकालना है, वॉल्यूम का रेट. ठीक है. अब ये बोलो, ये जो वाटर लेवल दिखाई दे रहा है ना तुम्हें, ये किस शेप का है? कोन शेप का है, आई थिंक, है कि नहीं? तो अगर मैं कोन शेप का यहाँ पर फिगर लूं तो वॉल्यूम भी मुझे कोन का ही लेना पड़ेगा, है कि नहीं? सो लिखो हियर v equals to 1/3 pi r square h. 1/3 pi r square का वैल्यू, r का वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखा था. यहां पर देखो h by root 3 whole square into h. That means 1/3 into pi into h square by 3 into h. That means 1/9 pi h cube. ये होता है किसका वैल्यू? v का वैल्यू. ठीक है. हो गया. अब सो बोथ साइड हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि मुझे वॉल्यूम का रेट निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ऑब्वियसली.
So dB by dt equals to 1 by 9 into pi ddt of h cube. That means pi by 9 ddt of h cube means 3h square. Okay, 3h square dh by dt. ठीक है, dh by dt. तो यहां पर देखो, so dv by dt when डेप्थ लास्ट में देखो h इक्वल्स टू शायद 24 सेंटीमीटर गिवन था, 24 सेंटीमीटर गिवन था ना क्वेश्चन में. देखो लास्ट में एक लिखा हुआ है व्हेन द डेप्थ इज 24 सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम रेट. ओके, सो व्हेन h इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, जस्ट लाइक यू कैन सी, you can write like this, h equals to 24. Now pi by 9, 3 into h square means 24 whole square, and dh by dt, what is the value of dh by dt? 1 centimeter per second, I think, no, 1 centimeter per second, ये होता है dh by dt. Now you can calculate this thing, 3 pi by 3 into 24 into 24 into 1. ठीक है, so 8, so here 192 pi सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. dB by dt है, दैट मीन्स टाइम के रेस्पेक्ट में सेकंड आएगा, और वॉल्यूम का यहाँ पर यूनिट तो सेंटीमीटर क्यूब है, दैट मीन्स dB by dt यहाँ पर क्या निकला? 192 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. ओके, हो गया. फिर sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. 12 centimeter cube per second. Sand is pouring from a pipe at a rate of 12 centimeter cube per second. 12 centimeter cube per second. Done. The falling sand forms a cone on the ground. Falling sand forms a cone on the ground. Okay, falling sand forms a cone on the ground. Okay, in such a way that the height of the cone is in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius. Is always 1/6 of the radius. Okay, of the base. Radius of the base. Okay. How fast the height of cone is increasing? How fast the height is increasing when the height is 4 meter, 4 centimeter. Okay, that means here the sand is being poured. Okay, sand is being poured, and as you all know that whenever this sand is getting poured, then I think it will become the cone shape. Okay, that means just like that. ऐसे होगा ना कौन. अगर मैं यहाँ पर ये जो सैंड है मैं अगर पोर करूं कंटिन्यूअसली तो ये कैसा शेप बनेगा? एक कोन शेप बनेगा. सो दैट मीन्स जितना तुम यहाँ पर सैंड पोर करोगे, सैंड डालोगे, ठीक है, मिट्टी डालोगे, तब ये जो कोन शेप है ये बढ़ता रहेगा, साइज में बड़ा होता रहेगा.
तो साइज में ये कोन शेप बड़ा होता रहेगा, दैट मीन्स इसका हाइट भी इंक्रीज होगा, बेस रेडियस भी इंक्रीज होगा, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, सब कुछ इंक्रीज होगा यहाँ पर, है कि नहीं? तो वही यहां पर बोला गया है, देखो, ए सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट मीन्स ये जो कोन शेप का यहां पर ये सैंड पोर हो रहा है, इसका जो वॉल्यूम है वो 12 सेंटीमीटर पर क्यूब 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इस स्पीड में शेप का ये जो साइज है वो बढ़ रहा है. Falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius. That means यहाँ पर ये जो cone shape बन रहा है ना, तो मैंने बोला है कि height और radius दोनों ही change होगा. तो यहाँ पर बोला गया कि height जो होगा वो 1/6 of the radius होगा. That means height को अगर तुम h consider करो and the base is r, then h equals to 1/6 into r. Because you can see height is 1/6 of the radius. That means h equals to 1/6 into r. This relation is given between r and h. So that means whenever just you that means you have this use. That means you need to convert this r term into the h term or the h term into the r term. Then you can use this equality because h equals to 1/r. Okay. How first the height is increasing? Because this is the height related questions. That means obviously the value of r should be found. Okay, and all the expressions should be rearranged as the h term. Okay, so that we can find the dh by dt here. dr by dt needs not to be found because dr by dt radius is changing rate actually not to be found. Here you can see in this, according to the question, only height rate needs to be found. So that means whatever the term related to h will be in the question, will be in the solution. That should be converted to the h term as well. That means यहाँ पर क्वेश्चन में जितना सारा आर्क रिलेटेड टर्म होगा उसको हम लोग h में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर r को रखेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि dr by dt भी एक आ जाएगा. dr by dt का वैल्यू क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है, मुझे निकालना है यहाँ पर dh by dt. तो यहाँ पर r को क्यों रखें, r को मुझे यहां से भागाना पड़ेगा. इसलिए जो है ये कंडीशन, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट दिया गया है, पहले लिख लो. दैट मींस एक कोन शेप का यहां पर ये बन रहा है, ठीक है, ऐसे. तो ये होता है h, ये होता है बेस रेडियस. दैट मींस ये r और ये है h. ओके, लेट हाइट ऑफ कोन equals to h centimeter, base radius of cone equals to r centimeter. According to the question, h equals to 1/6 of r. That means यहां से r का वैल्यू अगर मैं निकालूं 6h. ओके, तो जहां जहां पर मुझे r मिलेगा वहां पर मैं 6h पुट कर सकता हूं, ठीक है. Given dv by dt equals to 12 centimeter cube per second, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है. That means the positive sign should be chosen here. Okay, so dv by dt equals to 12 centimeter cube per second, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है. जितना तुम यहाँ पर सैंड डालोगे उतना ही कोन का शेप बड़ा होता रहेगा. तो बड़ा होता रहेगा, दैट मींस वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा ना, तो प्लस साइन यूज करेंगे. सो अब तो सब कुछ निकल गया. अब निकालना है क्या, हाइट इंक्रीजिंग रेट निकालना है. हाइट किस रेट में इंक्रीज हो रहा है वो निकालना है, ठीक है. वी नो दैट v equals to 1/3 pi r square h. v equals to 1/3 into pi r square. That means ये 6h whole square into h. That means v equals to 1/3 into pi into 36h cube. So 12. That means v equals to 12 pi h cube. 12 pi h cube. है कि नहीं, ठीक है. So
dv by dt, क्योंकि यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है, dv by dt का वैल्यू भी गिवन है, सो 12 पाई। अब h क्यूब का क्या होता है 3h स्क्वायर, और h का क्या होगा dh by dt, सो dv by dt का वैल्यू 12 है, 12 इंटू पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू dh by dt। सो व्हेन h का वैल्यू शायद गिवन है क्वेश्चन में, देखो लास्ट पार्ट में व्हेन h इक्वल्स टू, व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, व्हेन h इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। देखो ये पहले नहीं बिठाना है, अगर पहले ही यहाँ पर h का वैल्यू बिठा दो, यहाँ पर h का वैल्यू 4 बिठा दो, तो dh by dt कहां से मिलेगा तुम्हें, dh by dt तो मिलना है। तो ये व्हेन वाला जो पार्ट है एकदम लास्ट पार्ट में आपको बिठाना है, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पर 12 इक्वल्स टू 12 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 8 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 स्क्वायर, और dh by dt दैट मीन्स हाइट चेंजिंग रेट कितना गिवन है यहाँ पर, dh by dt तो निकालना है तुम्हें, है कि नहीं, dh by dt तो निकालना है। सो यहाँ पर 12 कैंसिल, तो dh by dt इक्वल्स टू 1 by 48 pi centimeter per second. That means this is the height increasing rate, dh by dt. Okay, now you can see the height increasing rate is solved. Okay, and that's why this radius part, that means r related part, was converted to the h related part, because we needed to be found actually this height dh by dt should have been found, and that's why we converted the r related term into the h related term, so that we could get the h terms, and most importantly dh by dt could have been found by this conversion. Okay, now next question. An aeroplane is flying horizontally at the height of 2 by 3 kilometer. Okay, an aeroplane, just write the question. An aeroplane is flying horizontally. An aeroplane is flying horizontally at the height of 2 by 3 kilometer with a velocity of 15 kilometer per hour. Okay, find the rate at which it is receding from a fixed point. Find the rate at which it is receding from a fixed point. Okay, from a fixed point on the ground. Okay, on the ground, which is passed over 2 minutes ago. Which is passed over 2 minutes ago. So, very complicated question. So here this aeroplane is flying. Okay, this is the main thing. And just you have a fixed point. Okay, after some time the displacement occurred. Okay, because the plane is flying. Okay, so actually it is moving from one place to another place. So that's the why actually this his place is not fixed. Okay,
So from a fixed point, actually this aeroplane is flying, and after some time, after 2 minutes, the new position of the aeroplane will be there, okay, which is 2 by 3 kilometer above from the ground. Okay, now you need to find, just it is the base, okay, it is the fixed point, just take as P. Now it is this another point A, and this distance is, this time distance is 2 minutes 2 minutes ago. That means पहले प्लेन जो है यहां पर था, है कि नहीं, यहां पर था एरोप्लेन, यहां पर था। अब जो है 2 मिनट के बाद वो कहां चला गया, इधर चला गया। दैट मीन्स न्यू पोजीशन कौन सा है, ये है। ये ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है, 2 by 3 किलोमीटर ऊपर है, तो ये न्यू पोजीशन है, ये इसका नाम तुम बी दे दो। अब बोला गया ये जो ऊपर था, है कि नहीं, अब जितना प्लेन उधर जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते देखो, ऐसे ऐसे करते 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 ये जो पार्ट है इसका जो लेंथ है वो बढ़ता रहेगा ना, तो न्यू पोजीशन में ये देखो ऐसा होगा ना, ठीक है। दैट मीन्स ये जो लेंथ चेंज हो रहा है उसका तुम्हें यहां पर रेट निकालना है, ठीक है। यहां पर बोला गया, क्या बोला गया, फाइंड द रेट एट व्हिच इट इज रिसीविंग फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। दैट मीन्स फिक्स्ड पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है, तो कितना रेट से चेंज हो रहा है वो आपको निकालना है। दैट मीन्स चेंज मतलब ये फिक्स्ड पॉइंट ये है और एरोप्लेन के बीच डिस्टेंस कौन सा है, ये सब डॉटेड लाइन डिस्टेंस ही तो है ना। अब इस पोजीशन में आते आते जो ये डिस्टेंसेस का जो रेट है, जिस रेट से वो चेंज हो रहा है, वो रेट आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है। और ये जो एरोप्लेन का स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम चाहिए, 2 मिनट्स टाइम चाहिए, क्योंकि यहां पर बोला गया है कि पास्ड ओवर 2 मिनट एगो। दैट मींस जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको ये एरोप्लेन जो है 2 मिनट पहले ही पार कर चुका है। दैट मींस अभी जो न्यू पोजीशन है और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, दोनों के बीच जो टाइम डिफरेंस है वो है 2 मिनट, 2 मिनट, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर एक काम कर देते हैं, देखो पी से लेके ए तक तो जाने के लिए 2 मिनट चाहिए, है कि नहीं। वेलोसिटी कितना है, यहां से लेके यहां तक कितना स्पीड से एरोप्लेन गया, 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये लिखो हियर velocity equals to 15 kilometer per hour. Okay, so AP equals to AP distance कैसे निकालेंगे, टाइम कितना है, सो ऐसे लिख लो। सो एरोप्लेन covers the distance in 2 minutes is, क्या निकलेगा, वेलोसिटी पता है, टाइम भी पता है, 50। एरोप्लेन कवर्स द डिस्टेंस इन 2 मिनट इज 15 किलोमीटर पर आवर इंटू 2 मिनट। तो इसका कैलकुलेशन क्या आएगा, 15 by 60 into 2, that means half kilometer, that means ये जो डिस्टेंस है ना, ये हाफ किलोमीटर होगा, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस हाफ किलोमीटर है, क्योंकि 2 मिनट चाहिए ना यहां से लेके यहां तक जाने के लिए। सो वेलोसिटी है 15 किलोमीटर पर आवर, तो 2 मिनट में कितना कवर करेगा, यही तो डिस्टेंस होगा ना पी से लेके ए तक। सो दैट मीन्स हाफ किलोमीटर होगा इसका डिस्टेंस। मुझे निकालना है इसका रेट, है कि नहीं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, उसको y ले लेते हैं और इसको x ले लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है उसको x ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर नाउ पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करें यहां पर देखो, तो हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। दैट मीन्स 2x
dx बाई dt। अच्छा, ये डिस्टेंस अगर x हो तो ये होगा dx बाई dt। dx बाई dt तो यहां पर वेलोसिटी होगा, है कि नहीं? सो dx बाई dt, और ये तो जीरो हो जाएगा, इक्वल्स टू 2y dy बाई dt। ठीक है? सो 2 इंटू एक्स मतलब हाफ इंटू 15 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू ट्वाइस वाई डी वाई बाई डी टी। ठीक है? तो यहां पर 2 2 कैंसिल, तो रहेगा यहां पर y dy बाई डी टी इक्वल्स टू 15 बाई 2। तो यहां पर y का वैल्यू कहां से मिलेगा? तो यहां पर लिखो, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। सिंस ये एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, सो 4 एकदम लास्ट में ये बिठाना है ना, हाफ किलोमीटर, एक्स का वैल्यू हाफ होल स्क्वायर प्लस 4/9 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो कितना होता है? 1/4 प्लस 4/9 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। सो दैट मीन्स 36 और इधर 9 प्लस 16 है नहीं, इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। दैट मीन्स वाई इक्वल्स टू 5/6। वाई इक्वल्स टू क्या होता है? 5/6। बस बिठा दो यहां पर। सो 5/6 इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू 15/2। दैट मीन्स 3 ये 3। ओके, सो दैट मीन्स dy by dt equals to 9 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिफरेंसेस है, वो चेंज हो रहा है 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड में। सो दैट मीन्स यहाँ पर एरोप्लेन एक फिक्स्ड पॉइंट पे था, अब मूव करके चला गया कुछ दूर। ठीक है? कितना दूर हम लोग नहीं जानते, ये लास्ट में क्वेश्चन का लास्ट में बताया गया है। ठीक है? जो भी दूर जा, दैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है ना, दैट मीन्स हर जगह जो है ग्राउंड लेवल से उसका जो हाइट है, एरोप्लेन का जो हाइट है हर जगह सेम ही होगा। तो दैट मीन्स ये हाइट 3/2 किलोमीटर, 2/3 किलोमीटर, ये भी 2/3 किलोमीटर होगा, हर जगह 2/3, क्योंकि हॉरिजॉन्टली बोला गया ना। सो ये है 2/3 किलोमीटर। ठीक है? अब बोला गया कि ये जो यहां से लेके एरोप्लेन यहां से लेके यहां तक आया है, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए 2 मिनट्स टाइम उसको लगा। ठीक है? और स्पीड क्या है? 15 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोगों ने ले लिया है कि यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर है, स्पीड दिया हुआ है। तो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, फिर कैलकुलेशन करके देखा x का वैल्यू हाफ किलोमीटर निकल रहा है। x का वैल्यू हाफ हम लोग लास्ट में बिठा देंगे। ठीक है? फिर यही कैलकुलेशन करके पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है, वहां से x और y का एक रिलेशन मिला, dx बाई dt dy बाई dt का रिलेशन मिला। मुझे निकालना था किसका वैल्यू? dy बाई dt का वैल्यू। सो x रिलेटेड जो जो टर्म्स हैं सब जगह हमने x का वैल्यू dx बाई dt का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है? फिर एक y और dy बाई dt निकला। y का वैल्यू मुझे चाहिए, क्योंकि dy बाई dt का वैल्यू निकालना है ना, तो उसके लिए तो y का वैल्यू चाहिए। अच्छा, एक तो इक्वेशन मैंने बनाया था पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, वहां पर x का वैल्यू हाफ पुट कर दिया, क्योंकि x का वैल्यू तो हाफ है, देखो यहां पर पुट कर दिया करके y का वैल्यू निकला 5/6। ऐसे तो बिठा दिया वैल्यू, तो dy बाई dt का आंसर है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? फिर नेक्स्ट, a kite is moving horizontally at the speed of a kite is moving horizontally। एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है, बट लिटिल बिट डिफरेंसेस आते हैं। ओके, लिखो, a kite is moving horizontally, a kite is moving horizontally at a height of 151.5 meter। okay, a kite is moving horizontally, a kite is moving horizontally at the height of
one at the height of 151.5 meter. If the speed of the kite is 10 meter per second, if the speed of kite is 10 meter per second, how fast is the string being let out? How fast the string being let out? Okay. When the kite is 250 meter away, when the kite is 250 meter away, 250 meter away from the boy, away from the boy who is flying, boy who is flying the kite, who is flying the kite. That means जो लड़का काइट को उड़ा रहा है उस लड़के से डिस्टेंस बोला गया. ठीक है. The height of the boy is 1.5 meter. Height ये given है. Height of boy is 1.5 meter. That means क्वेश्चन है यहां पर, एक बॉय काइट उड़ा रहा है. ठीक है. तो फिगर ड्रॉ करें आगे. ये बेस है, बॉय यहां पर खड़ा है. ठीक है. बॉय का हाइट कितना है? यहां पर ये बॉय है, इसका हाइट है 1.5 मीटर. वेरी गुड. अब यहां से जो है वो काइट इस पोजीशन में था. ठीक है. पहले इनिशियल पोजीशन में तो यही होता है. फिर हॉरिजॉन्टली ये जो काइट है वो मूव करता रहा है ऐसे. ठीक है. किस स्पीड में? देखो काइट का स्पीड दिया हुआ है, काइट का स्पीड यहां पर दिया हुआ है. देखो काइट का स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड. ये 10 मीटर पर सेकेंड है. काइट यहां पर आ गया. आने के बाद ये जो काइट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज व्हाट? 151.5 मीटर. ओके. तो ये बॉय से काइट का जो डिस्टेंस है वही सेम कॉन्सेप्ट. यहां से ये, फिर ये, दैट मीन्स बॉय से काइट का डिस्टेंस चेंज होता रहा. ठीक है. सो ये जो डिस्टेंस है ये कौन सा है एक्चुअली? जो बॉय से काइट का डिस्टेंस कैसे माप सकते हो बोलो तो? ये जो ये है ना, ये स्ट्रिंग, मतलब ये जो धागा होता है ना जो काइट के साथ लगा हुआ होता है कि नहीं, जो धागा का लेंथ होगा वही काइट से तुम्हारा डिस्टेंस होगा. ठीक है. यहां पर क्वेश्चन में बोला गया, देखो हाउ फास्ट द स्ट्रिंग बीइंग लेट आउट. दैट मीन्स यहां पर तुम खड़े हो, यहां पर काइट है, काइट अभी ऐसे ऐसे जा रहा है. तो दैट मीन्स जितना दूर जाएगा तुमसे उतना ही तो स्ट्रिंग जो है वो निकलेगा. सो ऐसा ही पोजीशन आ जाए जो काइट बहुत दूर चला गया तुमसे. ठीक है. तो ये काइट के साथ जो तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालोगे? जितना स्ट्रिंग यहां पर यूज होगा उसका लेंथ ही तो डिस्टेंस होगा ना तुम और काइट के बीच. तो यहां पर ये बोला गया कि ये जो काइट मूव कर रहा है, तो यहां पर काइट मूविंग स्पीड यहां पर दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड. अब काइट मूव कर रहा है, तो काइट मूव करने के साथ आप तो ये जो स्ट्रिंग भी तो निकल रहा है ना. दैट मीन्स ये धागा जो तो निकल रहा है ना, तो ये धागा कितना स्पीड से निकल रहा है वो आपको निकालना है. ठीक है. सो ये होता है फिगर. ठीक है. सो यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं एक पैरेलल करके एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये हाइट कितना होगा? 150 मीटर होगा. क्योंकि ये काइट रिलेटेड क्वेश्चन है ना. अब पैर से तो काइट नहीं मापोगे ना तुम, आंखों से मापोगे. ठीक है. दैट मीन्स टोटल हाइट ग्राउंड लेवल से काइट का अगर हाइट 151.5 है
तो आंखों से कितना होगा, तुम्हारा हाइट उससे माइनस कर दो, दैट मीन्स 1.5 मीटर। किससे माइनस करना है, 151.5, तो मिलेगा कितना 150। दैट मीन्स आई लेवल से काइट का डिस्टेंस, काइट का जो हाइट है वो कितना होगा 150 मीटर होगा। यहां पर पैर से, यहां से डिस्टेंस काइट का नहीं मापना है, ठीक है, आंखों से मापना है। इसलिए आंखों के लेवल से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है और ये जो मिला 150 मीटर मिला, ठीक है। ये है x और ये है y, ठीक है। अच्छा, हियर देखो काइट का स्पीड दिया हुआ है ना, तो दैट मीन्स ये काइट का स्पीड, ये डिस्टेंस तो x है, दैट मीन्स x चेंज हो रहा है यहां पर, है कि नहीं, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। दैट मीन्स dx बाई dt गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। डिस्टेंस मैंने x लिया है, ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है कि नहीं, तो दैट मीन्स डिस्टेंस चेंज हो रहा है, दैट मीन्स x चेंज हो रहा है। x चेंज हो रहा है मतलब क्या है, dx बाई dt, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में है। सो dx बाई dt यहां पर क्या होगा 10 किलोमीटर पर आवर। यही तो वेलोसिटी है ना, यही तो स्पीड है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो वेलोसिटी या फिर स्पीड, कुछ भी बोलो, है कि नहीं, यही तो स्पीड है। तो स्पीड तो गिवन ही है 10 मीटर पर सेकेंड, तो दैट मीन्स dx बाई dt गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। नाउ हम लोग पाइथागोरस अगर यहां पर यूज करें 150 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, है कि नहीं। सो यहां पर भी सेम 2x dx बाई dt, इस पे क्वेश्चन नंबर 1 देकर रखो, बाद में जरूरत होगा। 2x dx बाई dt और 150 का तो ये 0 होगा, इक्वल्स टू ट्वाइस y dy बाई dt, 2 कैंसिल, है कि नहीं। अच्छा, यहां पर लास्ट क्वेश्चन में, एकदम लास्ट पार्ट में देखो, यहां पर x का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, है कि नहीं। देखो, when the kite is 250 meter away from the boy who is flying the kite, the height of the boy is, that means boy से, यहां पर boy से जो काइट का जो डिस्टेंस है वो 250 क्या है, 250 मीटर है कि नहीं। तो दैट मीन्स ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है शायद, है कि नहीं। dx बाई dt तो क्वेश्चन में गिवन है, dx बाई dt क्वेश्चन में गिवन है, तो ऐसे लिखो when y इक्वल्स टू 250, ठीक है। सो x का वैल्यू नहीं जानते हम लोग, dx बाई dt जानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं, और y मतलब 250 और dy बाई dt तो मुझे निकालना है यहां पर, ठीक है। सो दैट मीन्स यहां से dy बाई dt इक्वल्स टू क्या क्या मिला 10x बाई 250, तो ये dy बाई dt का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में मिला, बट यहां पर x है, x का वैल्यू मुझे कहां से मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जाओ, इक्वेशन नंबर 1 में जाओ, x का वैल्यू भी तो निकालना है ना तुम्हें, क्योंकि यहाँ पर dy का dt का वैल्यू निकालना है तुम्हें, इसके लिए तो x का वैल्यू चाहिए। विदाउट दिस वैल्यू यू कांट गेट द dy बाई dt हियर, ओके। सो फ्रॉम 1 ऐसे लिख लो, फ्रॉम 1 ठीक है, क्या है 150 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 250 होल स्क्वायर, y के जगह में 250 है, समझ में आया ना। 250 y का वैल्यू क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो बोला गया है कि काइट का डिस्टेंस फ्रॉम द बॉय इसकी क्या है 250 मीटर है, दैट मीन्स ये स्ट्रिंग का लेंथ 250 मीटर है, तो तुमसे काइट का डिस्टेंस जो है वो तो ऐसा ही होगा ना, ग्राउंड लेवल में तो नहीं होगा, है कि नहीं। सो इसलिए y का वैल्यू 250, अब निकाल लो x का वैल्यू यहां से, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 250 होल स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर, क्या होगा निकाल लो, तो 250 माइनस 150, 250 प्लस 150, दैट मीन्स 100 इंटू 400, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 200 whole square I think, so x equals to 200 बस। so dy by dt equals to 10 into x means 200 by 250, लो कैंसिल, क्या आएगा dy by dt equals to 8
मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स यहां पर ये जो स्ट्रिंग है ये किस स्पीड से निकल रहा है, दैट मीन्स ये जो धागा है कितना स्पीड से निकल रहा है, वो 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड से निकल रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ओके, सो नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, water is dropped at the rate of 2 meter cube per second. Water is dropped. Next question. Water is dropped at a rate of 2 meter cube per second. Water is dropped at the rate 2 meter cube per second into a cone of semi-vertical angle, into a cone of semi-vertical angle 45 degree. Okay, if the rate at which the water surface changes, if the rate of water surface changes when the height of the water is 2 meter, when the height of the water in the cone is 2 meter is d, then the value of 5d is, मतलब यहाँ पर वाटर जो है वो पोर हो रहा है, दैट मीन्स ड्रॉप्ड, एक ही बात है। वाटर इज ड्रॉप्ड एट द रेट ऑफ 2 मीटर क्यूब पर इन सेकेंड इनटू ए कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री। इफ द रेट ऑफ द वाटर सरफेस चेंजेस व्हेन द हाइट ऑफ वाटर सरफेस, ये जो चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है, व्हेन द हाइट ऑफ द वाटर इज 2 मीटर is d, then what is the value of 5d? Okay, that means यहाँ पर if the rate of water surface height, okay, water surface height is changing when the height is this 2 meter is d, that means यहाँ पर मुझे देखो हियर, यहाँ पर भी सेम एक इन्वर्टेड ऐसा कोन है, यहाँ पर पानी जो है ऐसे ऐसे गिर रहा है, तो पानी का ये जो है लेवल है वो बढ़ेगा ऑब्वियसली, तो दैट मीन्स ये आर है, ये एच है कि नहीं। हियर ये सेमी वर्टिकल एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, सो यहाँ पर ओ ए बी, सो ये फोर्थ ट्राइंगल एओबी tan 45 degree equals to height by base, height मतलब r by base 1 equals to r by h, so that means h equals to r. Now dv by dt, देखो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, देखो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज क्या है 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तुम्हें निकालना क्या है, यहां पर वाटर सरफेस हाइट का चेंजेस निकालना है, दैट मीन्स dh by dt निकालना है। सो ddt ऑफ, we know that v equals to 1/3 pi r square h, that means
dv बाई dt बोथ साइड t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये r स्क्वायर मतलब h स्क्वायर h क्यूब हो जाएगा, इधर ddt हो जाएगा। दैट मीन्स 1/3 पाई 3h स्क्वायर dh बाई dt, 3 कैंसल। यहां पर हाइट लास्ट में क्या दिया हुआ है 2 मीटर, तो ऐसे लिखो व्हेन h इक्वल्स टू 2 मीटर देन अच्छा dv बाई dt कितना दिया हुआ है 2, so that means 2 equals to pi into h square, that means 2 square into dh by dt, so that means dh by dt का वैल्यू क्या मिला 1 by 2 pi सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब dh by dt का वैल्यू 1 by 2 pi है ना, हाँ dh by dt का वैल्यू क्या नाम दिया गया d, so that means d equals to 1 by 2 pi सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब किसका वैल्यू निकालना है 5d का, तो सो 5d इक्वल्स टू लिख लो, d का वैल्यू अगर 1 by 2 pi है, सो 5d इक्वल्स टू 5 into 1 by 2 pi, that means 5 by 2 pi सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गया 5d का वैल्यू, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for the JEE main and advanced level exams, okay, from the rate of measures, okay. Just in the next from the next lecture, just we are going to start the tangent normal chapter, okay, tangent normal chapter. This chapter is very very important, and maximum time this from this chapter different question used to come in the different level exams, okay. So in this video just we have to stop here and milte hain next video mein. Or till then, stay safe and stay healthy. If you like my videos, if you like my lectures, then subscribe my channel and share with your friends and neighbors also. So thank you very much for joining my classes, and bye. Jai Hind.